May I call Mr. Pradesh to Dolan to Swami Shri Maharaj? Aujourd'hui, on va monter des petites affaires. Un jour, mandat survie, je peux pleurer pour vous. Il doit être il peut pleurer pour vous comme ça. Mandat survie, je dis, il est là-bas, il est dans la terre, il est comme un pissan à périodiser au gosse. Au fait que tu as un pissan, tu peux faire des rêves pour travailler sur ta route. Et elle n'est pas étudiée et tu viens faire. Et que ça n'a tu peux pas partir pour le travail. Ma survie, il vient toucher comme ça. Après ça même, tu peux pleurer pour vous. Et de la laine, j'ai dit, mais pas pleurer, mais pour montrer ça, que ça a une leçon, tenue une leçon. Et là, il fait beaucoup la pluie tomber. Ça, il détruit tout ce plantation, tout ce récolte. Faire que ça n'a pas de montrer comment ma survie est bloquée, comment il règne en colère à cause d'une place de misère. Astère, imaginez, Saudi, tous les jours, une centaine de milliers de vaches, taureaux, galatatoires. On peut faire. Et dans ma table, je passe autant de misère, je peux souffrir beaucoup, ma souffrance peut pleurer autant. La honte. Je dis, peine à la paix dans la terre, peine à la paix, autant inondation, calamité, tout pour ça. Pas rester sensible, mobiliser. Aide-nous pour sa vache. Aide-nous. Nous, de Vachala, nous pas pour tout seul, nous pas pour faire chala. Nous pas pour assez tout ce man vache qui est à la batola. Du moins, nous, chef de temps, sur le bord et nous. Et nous pas pour assez tout ce man vache. Aide-nous. Une vache qui vient de tirer autant qu'il est capable. Il de fumier. Un bœuf qui vient de travailler autant. Tout le long sur la vie comme un papa. Qu'est-ce que tu fais quand tu es de Mikisaï? Tu es devant maman papa? Non, mais c'est ça. Maman ça. Et dans le livre, il écrit, dans le bannier sacré, il écrit, un dimanche qui fait du dos une vache ou beurre, pour mes poils de sa vache-là, sur les gros, pour multiplier sa formule. Autant d'années pour souffrir dans l'enfer. Ça, comment je peux dire, le long vous avez resté, vous avez souffert dans l'enfer. Mais tu peux dire ça, ne pas pouvoir acheter tout ça dans la vache là. Mais, comme la vache là, il est vieux, et qu'il vient de nous, beaucoup de vache, et nous maman ça. Nous avons 7 vache comme un cadeau. Un enfant, il peut utiliser son maman jusqu'à 1 ou 2 ans. Il va utiliser son maman jusqu'à 1 ou 2 ans. Pensez bien. Mais qu'il continue à utiliser les vaches jusqu'à des beaux. Quand il dit insulter, vous êtes maman même, vous êtes content? Vous êtes content? Vous êtes content quand vous avez insulté votre maman? Non. Et sa vache qui est un beau se là. Comment c'est laissé à l'abattoir? Comment c'est laissé à Bellama? Comment? Je fais quelque chose. Écoute bien ce que vous pouvez dire. Quand c'est un sou pour venir, mais c'est pas pas de Dieu. Si jamais vous pouvez faire c'est pas, là vous trouverez comme mandat à côté de vous. Il y a un doute, il va vous gagner pas de sous. Comme mandat pour protéger sous, mais maman protège ses enfants. Bon, maintenant, je me demande, je ne les attends veteranity. Do you know what is veteranity? Who knows? You don't know? Swamiji will tell you about it. If you have any questions, please write
write on a paper and give it to Swamiji. Later on he will answer it. Santung inapuji ya pakai trakam aku jadi tongko. मेरे लाड लो मुझे बचा लो संकटे मेरी प्राण आगे बढ़ो रक्षा करो तेरी माता है परेशान आगे बढ़ो रक्षा करो तेरी माता है परेशान आगे बढ़ो रक्षा करो तेरी माता है परेशान ऐसी श्री राधे श्री गौ भागवत कथा का स्तुति दिवस। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत नाम का संकीर्तन करें और ठाकुर जी से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे मन को, मेरे वाणी
को, मेरे बुद्धि को अपने चरणों में लगाकर रखना। श्री राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल।
वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, गिरिराज महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। कल हम लोग चर्चा भगवत प्रेम पर कर रहे थे। कई बार एक प्रश्न आता है कि महाराज पहले से कथाएं ज्यादा होने लगी। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर पीछे जाएंगे आप तो इतनी कथाएं नहीं होती थी। बुजुर्ग सुनाया करते होंगे, कभी कभार आपको या कोई बुजुर्ग कहते होंगे, बोले जी हमारे यहाँ तो एक बड़ी सी कथा हुई थी जब हम बच्चे थे, बहुत बड़ी कथा हुई थी, बहुत लोग आए थे। इतनी कथा हो रही है, लेकिन जो बदलाव है वो पहले से कम हो गया। जो लाइफ में चेंज आना होता है वो कम हो गया। कथा बढ़ गई, मंदिर बढ़ गए, पूजा स्थल ज्यादा हो गए, लेकिन लाइफ जो है वो चेंज होना कम हो गया। पहले एक कथा होती तो पूरा गांव बदल जाता, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन जाता, पूरा गांव का गांव। एक कथा होती, पहले घर वाले सत्तू खाकर रह लेते और सात्विक हो जाते। घर में बढ़िया सत्तू बना देते घर वाले और उसको पीकर दिन भर गुजारा कर लेते, पूरा दिन निकल जाता। सुबह भी सत्तू पी लिया, शाम को भी पी लिया और जीवन ही कट जाता आराम से। कोई सुसाइड नहीं करता। आज से 50 साल पहले शायद ही सुना हो कि किसी ने सुसाइड कर लिया हो। वो मर गया, बोले जी वो लड़का तो सुसाइड कर लिया, वो यंग आदमी था सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया भाई? वो 50 साल का था, सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया? आज से 50 ईयर्स पहले चले जाइए तो शायद कोई सुसाइड करता हो, एक आध कोई मिलता होगा पूरे मॉरिशस में साल भर में कि भैया एक बंदा आज मर गया, खुद मर गया, जानबूझकर मरा, आत्महत्या कर ली उसने, सुसाइड कर लिया। अब क्यों? कथा बढ़ गई, मंदिर बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, उसके बावजूद भी सुसाइड क्यों? क्या कारण है? ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि जो इतने, जब कथा बढ़ गए हैं, मंदिर बढ़ गए, पूजा स्थल बढ़ गए, अब तो हर एक गली में छोटे छोटे अगर कॉलोनी है वहां भी एक मंदिर है, उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों है? घर में पहले कुछ भी नहीं होता, माँ बाप का सम्मान होता, माता पिता की खूब घर वाले सेवा करते, अब सब कुछ है फिर भी उनके लिए ओल्ड एज होम बन जा रहा है। क्यों? कभी आप लोगों ने विचार किया? कभी बैठकर एक आध मिनट के लिए सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सब कुछ सुविधाएं बढ़ रही है ना, मंदिर भी बढ़ रहे हैं, सुविधाएं भी बढ़ रही है, मंदिर में भगवान का श्रृंगार भी बड़ा सुंदर तरीके से होने लगा है, तो और आनंद आता है ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार में देख करके। इतना सब कुछ, सारी सुविधा बढ़ने के बावजूद भी आत्महत्या की प्रवृत्ति, सुसाइडल अटैक्स क्यों बढ़े? माँ बाप का सम्मान क्यों खत्म हो गया? इतनी कथा होने के बावजूद भी विचारों में परिवर्तन, जो थॉट्स हैं उसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? क्यों? ऐसा क्या कारण है? इतना कुछ बढ़ने के बाद तो सब कुछ बदल जाना चाहिए था हमारा, तो यहां तो रिवर्स चल रहा है। ये जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से हमारा जीवन भी रिवर्स की ओर रिवर्स होता चला गया। क्यों ऐसा? क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? अच्छा खासा 20 साल 22 साल 18 साल 25 साल का बच्चा एक सुसाइड कर लेता है, एक किसान सुसाइड कर लेता है, फार्मर सुसाइड कर लेता है, एक अच्छा खासा अफसर सुसाइड कर लेता है। क्यों?
फिर लोग कहते हैं बेचारा बढ़िया ठीक ठाक तो था, हमें कल मिला था, लेकिन कैसे पता नहीं। आखिर क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है गौ हत्या। सबसे बड़ा कारण, द बिगेस्ट रीजन, श्री राम। आप एक चीज को देखिए, जहां जहां गौ हत्या ज्यादा है वहां वहां आज स्थिति क्या है? कभी आप सर्वे करिए, अकेले बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अपना लैपटॉप ले लो, आईपैड ले लो, जो लेना ले लो, जिस आपकी जो इच्छा है, मोबाइल ले लो, उसको खोलिए और गूगल बाबा पे जाकर सर्च करिए कि सबसे ज्यादा गौ हत्या कहाँ है भाई, कहाँ खाए जा रहे हैं गौ मांस। फिर गूगल बाबा आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ, और उस पूरे रीजन की, उस पूरे कंट्री का या उसके आस पड़ोस में जहां जहां ये चीजें गौ मांस की बढ़ोतरी हुई, गौ हत्या बढ़ी, वहां की स्थिति क्या है। आज से 50 साल पहले की खपत देखिए और आज की खपत देखिए। 50 years बिफोर पहले कितना वो कंज्यूम करता था और आज कितना कंज्यूम कर रहा है। 50 years बिफोर वहां का जो क्राइम रेट है उसको देखिए और आज का क्राइम रेट देखिए। श्री राधे महाराज, श्री राधे। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख लीजिए कृपया। जब फोन बजे तो बड़े प्रेम से धीरे से बाहर जाइए और हॉल से बाहर जाकर बात करके आइए। श्री राधे। ऐसे नियम तो ये कहता है कि जब कथा सुनने आओ तो मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, उसको बजने ही नहीं चाहिए, साइलेंट मोड पर भी रखने की जरूरत नहीं, बंद ही कर दो। क्योंकि ये 3 आवर्स ऐसा कौन सा काम है जो रात के 12 बजे होगा, वो तो कुछ होना नहीं है, कोई ऐसा विशेष काम तो है नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं जो भी हम कर सकते हैं। बोले जी मेरा प्राण जा रहा है, मान लो मैं यहाँ से किसी को फोन करूं कि भाई अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो क्या कर लेगा मेरा? अब प्राण आगे बचा लेगा मेरा। अब मेरे प्राण निकलने हैं, मेरा टिकट कट चुका है यमदूत के यहाँ से, धर्मराज ने कहा भैया आपका काम धाम हो गया, चलो वापस आओ, बहुत कथा कर ली है, चलो। उसमें न तो माँ कुछ सहायता करने वाले, न पिता करने वाले, न पत्नी करने वाले, न भाई करने वाला, न बेटा करने वाला, सब यही मस्ती में रह जाएंगे। खुश होंगे ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी देर के लिए रोएंगे, रो करके मेरा ही नुकसान करेंगे, क्योंकि रोना भी मना है। जब तक शरीर में अग्नि न पड़ जाए तब तक तो रोना भी मना है, आप कभी रो नहीं सकते। शरीर में अग्नि पड़ने तक घर वालों को एक बूंद आंसू नहीं गिरने चाहिए। जब तक अग्नि मुख में डाली जाती है ना, उस समय का जब तक पिंड तर्पण न हो जाए तब तक घर वालों को रोना बिल्कुल मना है। अगर आप रोए तो जो बेचारा गया है उसको दंड भुगतना पड़ेगा। आप उसके लिए मोहब्बत नहीं दर्शा रहे हो, उसके लिए गड्ढा खोद रहे हो। आपके द्वारा आपकी आंखों से गिरे हुए आंसू उसको कफ के रूप में पीना पड़ जाएगा। आप जितनी बूंद टपकाओगे उतना ही उसको पीना पड़ेगा। तो आप उनके लिए मोहब्बत नहीं दर्शा रहे। श्री राधे। तो नियम तो यही है कि आप जब कथा सुनने आए ना तो फ्री माइंड आए। एक काम है सुनना है, कथा सुननी, कुछ भी हो जाए, बोले जी आग लगी, बोले लगने, अब लगेगी तो अब क्या करेगा? फायर ब्रिगेड वालों को फोन करो, वो करेगा। एक फायर ब्रिगेड का काम है, मेरा काम थोड़े लगने दे। श्री राधे। जय श्री राधे। बोल दिया करो, आज तो संख्या भी ठीक ठाक है। आप लोग अगर बोलो तो पूरा हॉल गूंजना चाहिए। आप
आपसे ज़्यादा तो हम ही तेज आवाज में बोलते हैं बिना माइक के। देखो, जय श्री राधे। आफ्टर दैट प्रसाद ठीक ठाक है, जितना एनर्जी लॉस होगा ना वो मिल जाएगा। डरो मत कि हम आपका कैलोरी बर्न करवा देंगे, बोलो आगे श्री राधे। अब कैलोरी बर्न करने के लिए भी लोग पैसे दे रहे हैं आजकल तो, हैं? उसमें भी पैसा लगता है भैया। कैलोरी हम आपका फैट घटा देंगे। श्री राधे। आखिर हम चर्चा कर रहे थे दशा क्यों है, सुसाइडल अटैक क्यों बढ़े, इतना उथल पुथल जीवन में क्यों है, इतना डिस्टर्बेंस क्यों है लाइफ में, इतना स्ट्रेस क्यों है। आज दुनिया का हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। दूसरा क्या? हाँ, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। हर दूसरे बंदे से पूछो, बोले बहुत प्यारा डिप्रेशन। श्री राधे। क्यों, क्या कारण है इसका? मैंने कहा सबसे बड़ा कारण है, आप सर्वे करिए और देखिए, खुद सर्वे कर लीजिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास सारी सुविधाएं सर्वे करने की। जहां जहां गौ हत्या ज्यादा है वहां उत्पात ज्यादा है, और जैसे जैसे गौ हत्या का ग्राफ बढ़ा वैसे वैसे वहां का क्राइम रेट बढ़ा। जहां पर गौओं की हत्या ज्यादा है, आज वहां सभी देश लगभग गृह युद्ध से परेशान है। सभी देशों में कोई ना कोई गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, लगभग सभी देशों में। सभी देशों की मैं बात कर रहा हूं। वहां ज्यादा से ज्यादा सुसाइड हो रहे, सुसाइड भी वाले ज्यादा है। उनका जीवन दूर से देखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन अगर नजदीक जाकर देखेंगे इनसे दुखी जीवन में कोई नहीं बेचारे। गधे बने हुए टॉप क्लास के, सुबह शाम तक एक काम है, काम। भोजन तक के नसीब नहीं है भाग्य में, वो भी थोड़े टोस्ट बना के खा जाएं। हमारे जैसे 5-7 प्रकार की सब्जी नसीब शायद ही भाग्य में कभी होता हो। कहीं रेस्टोरेंट में चले गए तो मसाले वाली और दुनिया भर की गंदगी खा के आ जाएंगे। 5 प्रकार की सब्जी हो और पत्नी बैठकर आराम से खिला रही हो, ऐसा तो भाग्य में शायद ही नसीब में हो। शायद क्या होता ही नहीं है। अगर पत्नी के साथ बैठकर प्रसाद पाना है ना, कि पत्नी प्रसाद पवा रही हो स्वयं बना करके अपने हाथों से, तो फिर वो एक दिन भी नसीब में नहीं है भाग्य में। कारण क्यों, ऐसी जीवन क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, गौ माता सिर्फ शरीर को ही शुद्ध नहीं करती, मन को भी शुद्ध करती है। मैंने पहले भी त्रियोले में भी इस पर चर्चा की थी, यहां भी वो बात चर्चा करनी जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। जीवन में अगर शुद्धता लाना है, इन सुसाइडल अटैक से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, तो सबसे पहले ईटिंग हैबिट को बदलना होगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये वेद भगवान कह रहे हैं, ये हमारी बात नहीं है। वेद भगवान की पहला वाक्य ही है आहार शुद्ध हो। जब तक ईटिंग हैबिट आपका नहीं बदलेगा, आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक विचार शुद्ध नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, हम तो आहार बिल्कुल शुद्ध करते हैं। विच टाइप ऑफ वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हो आप? विच टाइप? आप वेजिटेबल्स खाते हैं? हाँ जी, वेजिटेबल्स खाते हैं। किस तरह का, कैसे बना हुआ है वो, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? उसका प्रोडक्शन केमिकलाइज तरीके से ही हो रहा है, तो उसमें हम दबाकर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो केमिकल का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। श्री राधे। हम खेत में यूरिया डालते हैं, यूरिया का बना हुआ सामान ही तो खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और यूरिया अगर लगातार डाला जाए तो कुछ समय के पश्चात जमीन को बंजर बना देती है।
ये यूरिया की बहुत बड़ी खासियत है। और अगर यूरिया और पेस्टिसाइड से बने हुए वेजिटेबल्स भी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर शत्रु शुद्ध होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल बड़ा हंगामा मचा हुआ है ना हमारे यहाँ कि जैविक अनाज, जैविक ग्रेन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक तो जैविक खेती, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे बड़ा खिलाड़ी है इस समय इंग्लैंड के महारानी का लड़का, सबसे बड़ा प्लेयर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे दुनिया में किसी का है तो है प्रिंस चार्ल्स का। सबसे ज्यादा एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट है प्रिंस चार्ल्स का। सबसे ज्यादा स्टैक लगा हुआ उसको। क्वीन का पुत्र होने वाला किंग। तो हम जब तामसिक पदार्थों का भक्षण करेंगे, चाहे वह सब चीज तामसिक है, हमारे पास दूध नहीं है, दूध भी हम एवन मिल्क ही कंज्यूम कर रहे हैं, ए टू मिल्क कंज्यूम नहीं कर रहे। ए टू मिल्क मिलता ही नहीं मेरे नाम से। यहाँ मिलता है क्या ए टू मिल्क? नो। चलिए है उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ए टू मिल्क, ए वन मिल्क और पंचगव्य पर तो किसी दिन चर्चा करेंगे, उसी पर करेंगे, एक सेशन ही उसका रखेंगे। श्री राधे। तो दूध हमारा एवन मिल्क है। जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो भी केमिकलाइज है, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी इनऑर्गेनिक ही है। तो फिर हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि हमारे शरीर में जो कुछ भी जा रहा है वो सब तामसिक ही है। जो नहीं जाना चाहिए वो जा रहा है एक्स्ट्रा। तो आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। अगर प्योरेस्ट फॉर्म कोई दे सकता है आहार में भी तो वह गौ माता, क्योंकि गौ माता के गोबर के द्वारा जो चीज बनाया जाएगा, उपजाया जाएगा, वो सबसे बेस्ट होगा, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। श्री राम है। क्योंकि आज का साइंस भी नहीं पढ़ाता महाराज कि एलिमेंट रूप में कहीं ऑक्सीजन होता है। आजकल के साइंस को ये बुद्धि नहीं है, बेवकूफ है ना। श्री राम। साइंस नहीं पढ़ाता कभी भी कि एलिमेंट में, एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है। एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीजन कहीं साइंस नहीं पढ़ाता, केमिस्ट्री में कहीं वर्णन नहीं। एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है नहीं, गैस फॉर्म में ऑक्सीजन का वर्णन है, जहां भी डिस्क्राइब किया जाएगा गैस फॉर्म में। एलिमेंट में कहीं है क्या? है, क्यों नहीं है? एलिमेंट फॉर्म में है और बहुत ज्यादा है, 46.6% है एलिमेंट फॉर्म में। नहीं, आज के बच्चों से मत पूछो, बच्चों के जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं उनके ताऊ को नहीं पता, उनके बाप दादा को नहीं पता, उनको कहा तो गधे हैं। श्री राधे। हमें बताया, और हम ऐसे नहीं कह रहे, आपको हम देंगे, आप लैब में, दुनिया के किसी लैब में टेस्ट करा लीजिए कि मिलता है कि नहीं एलिमेंट में। 46.6% ऑक्सीजन है और उसको हम 60% तक इंक्रीज कर सकते हैं। यानी 46.6% को हम उसको 60% में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट रूप में उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास विद्या है। और वह जो ऑक्सीजन में एलिमेंट फॉर्म में बता रहा हूं वो है गौ माता के गोबर में, काउ डंग। जलाने के बावजूद भी उसमें 46.6%, यानी ये काउ डंग का जो राख है, जब हम जला देते हैं उसे, तब भी उसमें 46.6% ऑक्सीजन अवेलेबल है एलिमेंट फॉर्म में। आप दुनिया के, लेकिन ध्यान रखिए, इंडिजिनस काउ में,
जिससे A2 मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस इंडिजिनस काउ में 46.6% ऑक्सीजन अवेलेबल है एलिमेंट फॉर्म में। साइंस नहीं पढ़ाता, साइंस कहता है ही नहीं, क्योंकि उसको गाय नहीं उनके पास नहीं है, तो मार के खा जाने वाले लोग हैं जो आजकल के मॉडर्न साइंस, ये सब बेवकूफ है। रसायन का अगर प्रोफेसर देखना है तो कभी महर्षि कनाद को पढ़िए, ये सब चोर है। आज के जो साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं हमने निकाला है, सब बेवकूफ हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है अगर पढ़ना है तो महर्षि भास्कराचार्य को पढ़िए। महर्षि भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को पहले ही बताया है, आप उसको पढ़िए, सूत्र को उठाइए, महर्षि भास्कराचार्य के सूत्र को। ये जिस परमाणु बम और अणु बम और दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात होती है, आप महर्षि कनाद को पढ़िए, आपको मिल जाएगा क्या है। लेकिन कोई पढ़ाता थोड़े। कहावत है ना कि झूठ बात को अगर 100 बार बोल दिया जाए तो सत्य प्रतीत हो जाता है। किसी भी झूठ को अगर 100 बार आप रिपीट कर दें ना तो अगला मानेगा ठीक ही कह रहा है। तो न्यूटन से बहुत पहले महर्षि भास्कराचार्य हुए और महर्षि भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में इन सबका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया। फिजिक्स पढ़ना है तो महर्षि भास्कर को पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़नी है तो महर्षि कनाद को पढ़िए, बायो पढ़नी है तो सुश्रुत को पढ़िए, चरक को पढ़िए, वाग्भट जी को पढ़िए, धन्वंतरि, शारदानगर संहिता पढ़िए, पूरा आयुर्वेद के ग्रंथ है। महर्षि वाग्भट ने गौ माता पंचगव्य के ऊपर में 3000 सूत्र लिखे। सबसे ज्यादा पंचगव्य पर काम महर्षि वाग्भट ने किया, जबकि आज उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन अगर जीवन में स्थिरता लाना है, अगर जीवन में लाइफ में कुछ चेंज लाना है, तो सबसे पहले ईटिंग हैबिट बदलनी होगी। और ईटिंग हैबिट कहां, किसके थ्रू बदलना होगा? थ्रू गौ माता, क्योंकि पंचगव्य वहीं से मिलेगा। और उन्हीं पंचगव्यों में से 2 गव्य का इस्तेमाल, 3 गव्य का इस्तेमाल, छाछ का भी इस्तेमाल हम खेती के लिए करते हैं। मट्ठे का इस्तेमाल भी खेती में होता है, उसको भी हम जमीन में डालते हैं। उसका एक तरीका है, उसका एक फॉर्म है, उसको हम डालेंगे, उपज बढ़ती है। तो जब ये अगर सात्विक भोजन कोई दे सकता है तो वो भी अकेली गौ माता ही दे सकती है। लेकिन जब आप उस भोजन देने वाली माँ को ही मार दोगे तो दूध कौन पिलाएगा, भोजन कौन कराएगा? माँ ही नहीं रही तो बच्चा भूखा मर जाएगा। और अगर जी भी गया तो कहते हैं ना, बिना माँ का बालक है, कहावत है, बोले बेचारा बिना माँ का पला है, क्या इसका क्या दोष, माँ ही नहीं रही क्यों कहते? आप गांव में, कहावत है, गांव में आपने सुना होगा, प्राचीन से बोले बिना माँ का बालक है, मैया नहीं थी बेचारी, क्या करें? माँ होती तो कुछ सिखाती, माँ होती तो कुछ बताती, यानी माँ बताने वाली है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। श्री राधे। महाभारत का श्लोक है महाराज, कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्। श्री राधे। कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिवम गवाम प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्। श्री राधे। गायों के नाम का संकीर्तन करना, गायों के गुणों की कथा को श्रवण करना, गौ माता की कथा को श्रवण करना,
गौ माता का दर्शन करना, गौ माता का दान करना। हे राजन, युधिष्ठिर के लिए संबोधन है, हे राजन, जो गौ माता के कथा को श्रवण करता है, गौ माता का दर्शन करता है, गौ माता का दान करता है, गौ माता के नामों का गुणगान करता है, उसके समस्त पापों का सर्वथा पाप हरम शिवम, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और वह जीव परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है, वह परम कल्याण जो भगवत लोक है। अब आप समझ सकते हैं कि कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चावी पार्थिवम, ये सिर्फ भगवान के लिए शब्द आया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और यहां दूसरा श्लोक अगर इस प्रकार का अगर आप देखेंगे, इंद्र के लिए नहीं आया, चंद्र के लिए नहीं आया, वरुण के लिए नहीं आया, भगवान नारायण को छोड़कर, हमारे गोविंद को छोड़कर, राघवेंद्र सरकार को छोड़कर के और गौ माता को छोड़कर किसी के लिए श्लोक नहीं आया, ब्रह्मा के लिए भी नहीं आया। शास्त्र में कहीं भी श्लोक इस प्रकार का और किसी के लिए नहीं है। एक भगवान ठाकुर जी के लिए, उनके नाम के कीर्तन से, उनकी कथा श्रवण करने से, उनकी सेवा करने से, उनके दर्शन करने से जीवों का कल्याण होता है। और दूसरा श्लोक आया अगर कहीं पर भी, तो आया गौ माता के लिए। महाभारत का यह श्लोक है महाराज, कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिवम गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पाप हरम शिव। समस्त प्रकार के पापों का विनाश करने की क्षमता है दर्शन मात्र से। ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर आप किसी विशेष काम से निकल रहे हो और सामने गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो वह काम, वह यात्रा सफल माना जाता है, बहुत बढ़िया सफल माना जाता है। लेकिन गाय दूध बछड़ा को दूध पिलाती हुई तो दिखेगी तब जब गाय घर में गाय हो। अब गाय कहाँ रखे कोई, गाय की सेवा कौन करे महाराज? श्री राधे, जय श्री राधे। गौ माता, इसी महाभारत का श्लोक है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुञ्चति निर्भयम् विराजयति तं देशम् पापं चास्यापकर्षति। जहां पर भी गौ माता निर्भयता पूर्वक, बिल्कुल कोई डर न, फियरलेस होकर के बैठी रहती हूँ और बैठ करके वहां पर अगर सांस लेती हूँ तो उस स्थान के समस्त पापों को खींच लेती है। वह स्थान बिल्कुल प्योरेस्ट प्लेस हो जाता है, वहां कोई पाप निवास नहीं कर सकता, समस्त पापों को खींच लेती है। और जहां गौ श्वास ले रही है महाराज, आप वहां टीबी पेशेंट को, एक किसी गौशाले में टीबी पेशेंट को 4 घंटा बैठा दो पर डे, और 45 से 60 दिन के बाद उसका चेकअप करा लो। टर्बोक्लोसिस जिसको हो रखा है, टीबी, आप चेक करवाइए किसी गौशाले में बैठा करके, 4 घंटा 5 घंटा वहीं बैठे, अपना बैठा रहे, सोया रहे, जो करना है करे, सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां गौएं हैं उस गौशाले में जाकर बैठना है। आप 60 दिन बाद उसका चेकअप करवाइए, क्या रिपोर्ट आता है, उसका टीबी ठीक हो जाएगा। श्रेय, चाहे वो किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राधे। तो जहां पर भी निर्भयता पूर्वक सांस लेती, उस स्थान के समस्त पाप को खींच लेती है महाराज। श्री राधे। ये महिमा है मैया की, और ऐसी मां को छोड़कर पता नहीं हम कहां कहां भटक
श्री राधे। हम पता नहीं कहां पर आनंद ढूंढ, देखिए आनंद जो है ना वो बाहरी चीजों से नहीं मिलता। आनंद की जो परिभाषा है वो आंतरिक है। गौ माता की क्या महिमा है इसकी कथा सुनाता हूं। श्री राधे। एक हमारे यहाँ ऋषि हुए जिनका नाम है महर्षि चव्यन। नाम सुना होगा आप लोगों ने महर्षि चव्यन का। श्री राधे नाम सुना है ना? जब महर्षि चव्यन का नाम नहीं सुना, भागवत में आता है। हमने ही सुनाया है, कोई तीसरा सुना था तो मैं सोचता कि भैया नहीं सुनाया हो। मैं कथा कर चुका हूं 4 यहाँ पे श्रीमद् भागवत का, तो मैंने ही सुनाया है। और बगल में बैठकर मुझे ही कहा जा रहा है नहीं भाई। अगर मैं पहली बार कुछ कह रहा होता तो मैं सोचता कि चलो फर्स्ट टाइम आया हो सकता है किसी ने ना सुनाया हो। मैंने ही सुनाया है। श्रीमद् भागवत में महर्षि चव्यन का वर्णन है। चलिए अब किसी दिन भागवत कभी करेंगे तो वो भागवत वाली कथा सुनाएंगे, अभी दूसरी कथा सुनाती है। श्री राधे। महर्षि एक च्यवनप्राश का नाम सुने? च्यवनप्राश लिखा होता है, चव्यनप्राश लिखा होता है हिंदी में, डावर वाले में देखना। एक साधु बैठे होते हैं और लिखा होता है चव्यनप्राश। च आधा व य और ना। डाबर का कभी च्यवनप्राश खरीदे हो? उसको आम भाषा में कहते हैं च्यवनप्राश। वो च्यवनप्राश नहीं है, उसमें व आधा है, वय संयुक्त है, व और य जुड़ा हुआ है। वो अंग्रेजी में जरूर, अंग्रेजी में जो लिखा होगा डाबर पर वो लिखा होगा CHAVAN, लेकिन जब उसका हिंदी आप दूसरे साइड में देखेंगे तो वो ऐसे नहीं लिखा होगा। च्यवनप्राश नहीं लिखता, वो च और आधा व और य और न, चव्यन। वय संयुक्त है, व और य में संधि है, जुड़ा हुआ है। व आधा है, हाफ। देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कभी देख लेना, नेट पे ही देख लेना, उसको सर्च मारना, देखना भैया हिंदी में कैसे लिखा है। और उसमें उसका जो पिक्चर है, लोगो है डाबर का, और डाबर का लोगो ही एक संत बने हुए। श्री राधे। चव्यनप्राश। श्री राधे। तो ये महर्षि चव्यन, एक बार की बात है, प्रयाग जी में बैठे श्री राधे, और प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। उस संगम में जल के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर। आज भी करते हैं लोग, कई संत हैं जो बैठ सकते हैं, उनके पास ये विद्या है, इस चीज को अपनाया है। श्री राधे। तो महर्षि चव्यन वहां पर तपस्या करते प्रयागराज में, और 1-2 साल नहीं महाराज, 10,000 वर्ष तक तपस्या, लगातार 10,000 साल से वो जल के नीचे बैठ करके और तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर ही। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये हमारी विद्याएं हैं, योग की कुछ मुद्राएं हैं, कुछ भगवत कृपा, कुछ मंत्र सिद्धि, जिसके सहारे इस प्रकार के काम को किया जा सकता है। आप भी कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से कोई ऊपर से आया टपका और ऐसे वही कर सकता है, मैं नहीं, कोई भी कर सकता है। आप उस चीज को अगर सिद्ध कर लें, उस विद्या में आप पारंगत हो जाएं, उस पढ़ाई को आप पढ़ लें, तो आप भी कर सकते हैं। और अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है कि अब नहीं कर सकते, अभी भी करते हैं। अभी भी बहुत साधु जो करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महर्षि चव्यन 10,000 वर्ष से लगातार वहां बैठकर तपस्या कर रहे थे। श्री राधे। महाराज 10,000 साल से जल के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो आस पड़ोस में रहने वाले जो मछली हैं, जीव जंतु हैं, उन सबसे बड़ा प्रेम हो गया था, क्योंकि भाई सागर तो वही है। अगर किसी को देखना है, मिलना है, जुड़ना है, तो कौन हो सकता है? मछली या और बाकी जीव जंतु।
उन्हीं से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। श्री राधे। एक बार की बात है कि मल्लाहों की एक टोली उसी क्षेत्र में पहुंची और उस मल्लाह की टोली ने जब जाल डाला तो जाल डालने के कुछ देर के बाद मछली के साथ महर्षि चंपन भी उसमें फंसे और मल्लाहों ने बड़ी मुश्किल से उस जाल को जब बाहर खींचा तो बाहर खींचने के बाद देखा कि मछली के साथ साथ महर्षि भी आए, लेकिन मछलियां जैसे ही जल से बाहर आई वो महाराज, क्योंकि वो थल की जीव नहीं है, वो जल की जीव है और जल से प्रेम इतना है मछली का कि वो जल से 1 मिनट का भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। जल से आप जैसे ही मछली को जुदा करेंगे ना, प्रेम इतना गाढ़ा है, इतना प्रेम करती है वो जल से कि 1 मिनट के लिए भी जुदाई बर्दाश्त नहीं है। वो तुरंत तड़पना शुरू कर देंगी और शरीर भी छोड़ देंगी। श्री राधे। तो जब मछलियां तड़पने लगी, मल्लाहों ने देखा महर्षि चंपन आए हैं, श्री राधे, तो डर गए कि महर्षि भी जाल में फंसाए, पता नहीं क्या कह रहे, कुछ श्राप में दे दें, डर भी लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। तो महर्षि के चरणों में प्रार्थना किया कि गलती हो गई महाराज, हमें नहीं पता था आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हमने तो, हमारा तो यही काम है मछली पकड़ना, हम तो मल्लाह हैं, इस प्रकार के काम हम ज्ञानतावश करते रहते हैं, लेकिन गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए, आप बाहर आ जाइए जाल से। लेकिन मछलियों को जब तड़पते हुए महर्षि चंपन ने देखा तो महर्षि चंपन के मन में दया आ गई। महर्षि चंपन ने कहा, भाई एक शर्त पर मैं बाहर जाल से आऊंगा, अगर तुम इन मछलियों को छोड़ दो। ये मछलियां जीवित रहेंगी तो मैं भी जीवित रहूंगा, नहीं तो महर्षि चंपन ने भी अपना शरीर वैसे ही हिलाना डुलाना आरंभ कर दिया, वो भी तड़पना शुरू कर दिया। अब मल्लाह बिल्कुल डर गए कि एक संत मर गए मेरे हाथों, तो फिर तो मेरा कल्याण हो गया, भारी अपराध। वो बार बार प्रार्थना करते, महाराज बाहर आ जाइए, क्या चाहिए कुछ बताइए। महर्षि चंपन कहते, अगर मछली जीवित तो हम जीवित है, नहीं तो हम भी नहीं। मल्लाह डर करके सीधे पहुंचे। उस समय सूर्यवंश के राजा नहुष, महाराज नहुष राज्य करते, तो महाराज नहुष के पास में पहुंचे और महाराज नहुष के पास में जाकर के प्रार्थना किया कि महाराज हम जाति के मल्लाह हैं और हमने अभी अभी प्रयागराज में हम लोग निवास करते, वहां पर हमने अभी मछली पकड़ी, साथ में एक संत भी बाहर आ गए हैं और हम जब उनको बाहर आने के लिए कह रहे तो कह रहे अगर मछलियां जीवित रहेंगी तो हम रहेंगे, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे, तो आप हमारे इस धर्म संकट से रक्षा कीजिए। एक संत चरणों में, वैष्णव चरणों में अपराध न हो जाए, ब्राह्मण चरणों में अपराध न हो जाए कुछ, इसलिए आपसे विनती है कृपा करें। महर्षि नहुष को ये पता लगा तो अरे एक संत को कष्ट मेरे राज्य में, वो भी तब जब वो तपस्या कर रहे थे तो अपने पुरोहित को साथ में लिए, पुरोहित को और साथ में मंत्री को लेकर के महाराज नहुष पहुंचे हैं प्रयाग किनारे पे। वहां जाकर देखा वैसे ही उसी मुद्रा में बैठे, जिस मुद्रा में बैठे पद्मासन में ही बैठे हैं, क्योंकि पद्मासन में ही बैठ करके तपस्या कर रहे थे। महाराज नहुष ने जाकर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप बाहर आइए, जो सेवा आपको करनी होगी हम करेंगे, इनसे गलती हो गई है, ये अनजान थे, ये अपने जीविकोपार्जन के लिए मछलियों को पकड़ रहे थे, तो आप कृपा करके बाहर आ जाए। महर्षि चंपन ने कहा, नहीं आऊंगा, ये मछलियां जीवित रहेंगी राजन, तो मैं अपने प्राणों को रखूंगा, नहीं तो इन मछलियों के साथ मैं भी अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, मैंने भी शरीर छोड़ देना। कहा, अब महाराज नहुष ने कहा, हम आपके लिए क्या करें प्रभु, कुछ तो बताएं जिससे आप अपना जीवन रखें। कहा, फिर ऐसा करो, इन मल्लाहों को मेरे और मछलियों के बराबर धन दे दो। तो मल्लाह धन ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने दिन भर मेहनत की है, इनके दिन भर के मेहनत का परिणाम है मछलियां, और ये इसी मछली को पकड़ने के लिए दिन भर मेहनत कर रहे थे, तो जो इनका मेहनत का फल है वो इनको मिलना चाहिए। इन्होंने परिश्रम किया है, इन्होंने लेबर तो किया है, तो मेरा और मछलियों के बराबर धन इनको दे दो।
ठीक है, मछलियां ये बाहर वापस नदी में डाल देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। महाराज नहुस ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, हम अभी तुरंत मंत्री को कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा आप इन मल्लाहों को दे दीजिए। महर्षि चंद्र ने कहा बस मेरा मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्रा, बस इतना मूल्य मेरा। महर्षि अब समझ में नहीं आ रहा, क्या ठीक है महाराज 10,000 स्वर्ण मुद्रा है। कहा बस इतनी, कहा महाराज 50,000 स्वर्ण मुद्रा है। कहा मेरा इतना ही मूल्य है नहुस। कहा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। जब उस पर भी बात नहीं बनी तो महाराज नहुस ने कहा आधा राज्य दे दिया महाराज, मल्लाहों को आधा राज्य दे दिया, अब तो आप कृपा करके वापस बाहर आइए। कहा मेरा मूल्य सिर्फ आधा राज्य, जबकि महाराज नहुस पूरे पृथ्वी के राजा थे उस समय, चक्रवर्ती सम्राट महाराज नहुस। हाफ राज्य देने के बाद, आधा राज्य देने के बाद भी जब बात नहीं बनी, महर्षि चंद्र ने कहा नहुस तुम पूरा राज्य भी दे दोगे तो मेरा मूल्य नहीं चुका सकते, तुम्हारी पूरी संपत्ति यानी पूरा पृथ्वी का राज्य भी तुम दे दो मल्लाहों को तब भी मेरा मूल्य नहीं चुकेगा श्री राधे। इसलिए तुम सोच विचार कर इनको उचित मूल्य दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब महाराज नहुस को समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं पूरी अपनी संपत्ति दे दूं तब भी अगर मूल्य नहीं चुकेगा तो आखिर क्या ऐसा कौन सा चीज है जिससे इनका मूल्य चुक जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज श्री राधे। चंपन राजी नहीं है। चंपन ने कहा तुम फिर से सोच विचार करो और सोच विचार कर मेरे बराबर का मूल्य दो तो मैं इसके लिए तैयार हूं बाहर आने, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा और यहीं शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन महाराज नहुस जो बहुत विद्वान हैं, भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसी कौन सा मूल्य है जो मेरे राज्य से भी बड़ा है, मेरे से भी बड़ा है, सब कुछ दांव पर लगा चुका हूं, उसके बावजूद भी ये कह रहे नहीं इससे काम नहीं चलेगा। उसी समय श्री राधे, क्योंकि बड़े दुखी है महाराज नहुस, बहुत दुखी है, बहुत समझ में नहीं आ रहा, जो राजपुरोहित साथ में आए हुए उनके समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें। जिस समय ये सलाह चल ही रहा था कि उसी समय एक संत महर्षि का आगमन हुआ जिनका नाम है गोजाल, उनका नाम है महर्षि गोजाल। इनका जन्म हुआ है, इनका नाम है गोजाल। इनका जन्म एक गौ के पेट से हुआ है, गौ माता के पेट से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम है महर्षि गोजाल श्री राधे। उसी समय और फलहारी हैं, वनवासी हैं, जंगल में रहते, कभी नगर में नहीं जाते, बस फल खाते, गव्यों का सेवन करते श्री राधे और आनंद से जीवन जीते। उसी समय अनायास वहां पर महर्षि गोजाल का आगमन हुआ और जब महर्षि गोजाल आए तो महाराज नहुस ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव बड़ी दुविधा में है, बड़ी कृपा कि जो आज आपके दर्शन हो गए। संत का आगमन बड़े भाग्य से होता है श्री राधे। जीवन में संत का आगमन जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते तब जाकर जीवन में संतों का आगमन होता, संगति मिलती, संत दर्शन देते श्री राधे। इसलिए महाराज हमारे यहाँ तो कुंभ मेला लगता है तो हम तो इंतजार करते रहते कि चलो एक जगह 12 साल बाद। ऐसे तो सभी संतों के दर्शन नहीं होते, लेकिन अगर करना हो संतों के दर्शन तो 10-12 घंटे में ही भारत के जितने भी मूर्धन्य संत हैं सबके दर्शन हो जाते हैं। शाही स्नान के समय में एक जगह खड़े हो जाओ चुपचाप, और उस शाही स्नान के समय में खड़े हो जाओ कहीं लाइन में लग के तो जितने संत हैं वो सब दिख जाएंगे। वो 10-12 घंटे का करीब 6 से 7-8 घंटा आपको लाइन खड़ा होकर कहीं पर या बैठ कर देखना होगा। कोई एक जगह पकड़ लीजिए, बैठ जाइए बस।
उसमें 7-8 घंटे में आपके सभी संत, भारत के जितने संत हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, लाखों संतों का दर्शन हो जाएगा। तो यहां महर्षि नहुष के सामने जैसे आज एक संत नहीं, 2-2 संतों का दर्शन, एक महर्षि चंबल जो कष्ट में हैं, जाल में फंसे हुए हैं और निकलने को तैयार नहीं, लेकिन उनके लिए ही विचार विमर्श कर रहे थे कि उसी समय वनवासी संत हैं, फलाहारी हैं, फल पे ही रहते, मुनि गोजात का आगमन हुआ, उनका जन्म ही गौ माता के गर्भ से हुआ है। गौ माता का गर्भ और लगभग इंसान का गर्भ बराबर। हमारे यहां भी अगर डॉक्टर 9 महीना 10 दिन ही टाइम देते हैं, टाइम पीरियड है ये बच्चे के परिपक्व होकर बाहर आने का, 9 मंथ 10 डेज। बाकी भैंस का 10 महीना है। अगर भैंस देखोगे तो 10 महीने से पहले नहीं देती बच्चा। गाय 9 महीना 10 दिन में दे देगी, लगभग दे देगी। 9 महीना 9 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। और इंसानों का भी पीरियड से इसी समय में उनके यहाँ भी गर्भावस्था में बच्चा पैदा होता है। तो ये महर्षि गोजात का गौ माता से जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम है गोजात। श्री राधे, गो से जन्म लेने के कारण। तो महर्षि गोजात जब आए तो उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, कहा महाराज बड़ी कृपा जो आज आपके दर्शन हुए, बड़ी कृपा। लेकिन प्रभु मैं धर्म संकट में हूं, आप इससे उबारिए, क्योंकि संतों के दर्शन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए भक्ति ने भी नारद भक्ति सूत्र में अगर देखें, नारद भक्ति संवाद अगर भागवत में देखें तो भक्ति महारानी ने भी नारद जी से कहा, भो भो साधो छनम तिष्ठम मत चिंताम अविनाशय। हे साधु आप रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए, श्रीमद् भागवतम महात्मा। श्री राधे। यहां संत आए तो प्रणाम करके कहा, प्रभु बड़ी। महर्षि गोजात ने पूछा और कैसे हो राजन? कहा बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन एक बहुत दुविधा में हूं और बहुत परेशान हूं, कष्ट में हूं महाराज। क्या कष्ट है? कहा कष्ट ये है कि महर्षि चब्बे नबी भी मल्लाहों के जाल में फंसकर बाहर आए हैं और उनको बाहर आने को तैयार नहीं। उनका शर्त है कि अगर मछलियां जीवित रहेंगी तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। हमने उनसे कहा प्रभु क्या करें? तो उन्होंने कहा मेरे बराबर मूल्य दे दो। अब मैं पूरा राज्य देने को तैयार हूं, अपने आप को देने को तैयार हूं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं मेरा मूल्य पूरा नहीं हुआ, वो मानने को तैयार नहीं कि मेरा मूल्य इतना है। तो ऐसा कैसे, क्या करें? उनका क्या मूल्य दें, समझ में नहीं आ रहा। महर्षि गोजात ने कहा अच्छा महर्षि चंदन का मूल्य देना है राजन। हाँ देखो राजन, संतों का मूल्य नहीं आंका जा सकता, कितना देना है, उनका मूल्य कितना होगा। ब्राह्मणों का मूल्य नहीं आंका जा सकता। और इनके सगोत्री, अगर इनका गोत्र किसी से मिलता जुलता है तो वो है गौ। ब्राह्मण के सगोत्रीय है गौ। ब्राह्मण का सूतक पातक भी 10 दिन का और गौ माता का भी सूतक 10 दिन का, दोनों 10 ही दिन वाले हैं। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध हो जाता है और गौ माता भी 10 दिन में शुद्ध हो जाती है। 10 दिन बाद गौ माता का भोग ठाकुर जी को लगने योग्य हो जाता, 10 दिन तक भोग नहीं लगता। श्री राधे। तो अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो, एक गाय की कीमत है, महर्षि चंबन के निमित्त एक गौ का दान कर दीजिए। इनकी कीमत आप जाकर उनको बोलो कि महाराज आपके बराबर मैंने एक गाय, आपकी कीमत के बराबर एक गाय मैंने इन मल्लाहों को दान कर दी। और महाराज नहुष प्रसन्न हो गए। श्री राधे। और महाराज नहुष ने जाकर कहा गुरुदेव मैंने मल्लाहों को एक गाय मंगाई बढ़िया सुंदर सी अपने गौशाला से, और कहा मैंने एक गाय देकर मल्लाहों को एक गाय दी, और कहा एक गाय देकर मैंने मल्लाहों से आपको खरीद लिया है महाराज, अब तो आप कृपा कर सकते हैं मुझ पर। श्री राधे। महाराज तुरंत महर्षि चंबल वहां से उठे, कहा राजा आप तुमने मेरा मूल्य चुका दिया है,
इसलिए मैं अब तुम्हारी संपत्ति हो गया हूं, क्योंकि श्री राधे कीर्तनम श्रवणम गानम, ये महर्षि चंदन का ही श्लोक है, इसी प्रसंग का महाभारत का। ये कथा भी मैं ऐसे जोड़ के नहीं कह रहा हूं, महाभारत की कथा है। महाभारत पर्व को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा अनुशासन पर्व की कथा। कीर्तनम श्रवणम गानम दर्शनम चापि पार्थिवम गवां प्रशस्यते वीरः सर्वपापहरं शिवम्। कहा महाराज होश, गौ माता के दर्शन से, कीर्तन से, उनके नामों के कीर्तन से, उनके स्पर्श से, उनके दान करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता और परम कल्याण की प्राप्ति होती। गावो लक्ष्म्याः सदा मूलम् गोषु पाप्मान विद्यते अन्नमेव सदा देवानां परमं हविः। गावो लक्ष्म्याः सदाः, गाय लक्ष्मी की मूल है, जड़ है, रूट ऑफ लक्ष्मी। अगर रूट ऑफ लक्ष्मी कुछ है तो वही गौ। गावो लक्ष्म्याः सदा मूलम्, गाय माता लक्ष्मी महारानी की मूल है। लक्ष्मी हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए महाराज। कितने लोग हैं जो लक्ष्मी नहीं चाहते? हाथ खड़ा करेंगे ना, जिनको लक्ष्मी नहीं चाहिए। कोई नहीं करेगा, सबको चाहिए, लेकिन लक्ष्मी की जड़ क्या है? गावो लक्ष्म्याः सदा मूलम् गोषु पाप्मान विद्यते। रूट ऑफ लक्ष्मी अगर कोई है तो वह है गौ माता। और गोषु पाप्मान विद्यते, जहां पर गौ माता का निवास स्थान है वहां पर पाप कभी भी नहीं रहते, वह पाप रहित हो जाता है, प्योरेस्ट प्लेस हो जाता है वह। और अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः। श्री राधे। अन्नमेव सदा गावो, मनुष्यों को मैया सदैव अन्न देती है। अगर मनुष्यों को कोई अन्न दे सकता है तो वही गौ माता। कुछ भी न मिले महाराज, अगर एक गाय है तो पूरा परिवार बन जाएगा। सिर्फ गाय का दूध गौमूत्र पीने के अलावा अगर पी रहे हैं प्रतिदिन 20 ml गौमूत्र पर डे, अर्ली मॉर्निंग 10 to 20 ml, एंड रोज दूध मिल जाए तीनों समय पीने को, आपका जितना क्षमता है लीवर का उस हिसाब से डाइजेस्ट, क्योंकि गाय का दूध डाइजेस्ट ही होता है, वो अनडाइजेशन करता ही नहीं है। लिमिट में अगर आप पिए तो डाइजेस्ट हो जाता है। तो गाय के दूध से पूरा जीवन काटा जा सकता है। लेकिन अगर गौ होगी, गौ माता होगी, जहां पर भी गौ माता होगी वहां पर अन्न मिलेगा ही मिलेगा। अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः। गौ माता हमें अन्न देती है मनुष्यों के लिए, और देवताओं के लिए हविष्य भी वही प्रदान करती है। जो हविष्य बनता है वह हमें गौ माता के द्वारा प्रदत्त चीजों से ही हविष्य बन सकता है। गौ माता नहीं तो हवि भी नहीं।
श्री राधे। गौ माता नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वाहाकार वसटकारो गोषुं नित्यं प्रतिष्ठतो गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य दामुखम्। ये जो स्वाहा है, वसटकार है, ये सब गाय में ही प्रतिष्ठित है। ये गाय में ही निवास करती है। स्वाहा स्वाहा भी जो है ना, ये स्वाहाकार भी तभी कर सकते हो जब गौ है, क्योंकि गौ माता यज्ञों की मूल है। यज्ञों का संचालन अगर कोई करता है तो गौ माता है। बगैर गौ माता के यज्ञ संभव नहीं। उसकी मुख है, यज्ञ के मुख है हमारा। स्वाहा शब्द है, आप करते होंगे, हर कोई करता होगा स्वाहा स्वाहा। बिना यज्ञ के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। यज्ञ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हरिनाम। हरिनाम करने के लिए, पहले हरिनाम में प्रवृत्त होने के लिए यज्ञ की आवश्यकता। कई बार एक होता है ना कि हरिनाम करो, गाजे होते बोले हरिनाम हुआ कैसे तुम्हारा भाई? जब दीक्षा होती है तो बिना हवन के तो दीक्षा नहीं होता। किसी भी संप्रदाय में यज्ञ की महिमा जरूर है, बिना हवन के कुछ भी संभव नहीं। किसी भी संप्रदाय में। आज इस पर मैं चर्चा नहीं करता क्योंकि समय होने वाला है। श्री राधे। शहरों में और गांव में यही फर्क है। गांव में है तो आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा खींच लो। शहर वाले बड़े टाइम के पिकुलियर होते हैं, खास करके कथा के मामले में। श्री राधे। डीजे डीजे बज रहा हो तो फिर टाइम कोई टेंशन नहीं होता। चलो ठीक है। श्री राधे। समझदारी ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं यहाँ। श्री राधे। तो कथा में इंटेलेक्चुअलिटी ज्यादा आ जाता है, बाहर ज्यादा वो उमड़ उमड़ के बाहर निकलता है। श्री राधे। चलिए, तो यज्ञों का संचालन करने वाली भी गौ माता ही है। कई बार मुझे लोग कह देते हैं, इसलिए अगर यज्ञ भी देखा जाए तो गौ माता में प्रतिष्ठित है। और ये महर्षि चंबन कह रहे हैं ना उसको, मेरा मूल्य तुमने चुका दिया एक गाय में ही अगर मैं बिक गया। इसका कारण क्या है? देखिए, ये गाय कितनी महत्वपूर्ण है। श्री राधे। अमृतम हव्यम दिव्यम क्षरन्ति च वहन्ति च अमृतायतनं चैताः सर्वलोक नमस्कृताः। जो गायें, श्री राधे, गौ माता जो है ना, विकार रहित अमृत को धारण किए रहती है। उसमें कोई नहीं होती। प्योरेस्ट फॉर्म जो अमृत का है ना, वो गौ माता के पास है। श्री राधे। और जब हम ये कहां से लेते हैं? ये ब्रह्मांड से लेती रहती है। श्री राधे। और जब हम उसका दूध निकालते हैं तो वही अमृत हमें वो देती है दूध के रूप में। श्री राधे। इसलिए महर्षि चंबन कह रहे हैं, राजन, अगर अमृत का कोई बेस है जहां से अमृत हमें मिल सकता है तो बेस है गौ माता। श्री राधे। अमृता यतनम चैताः सर्वलोक नमस्कृताः। कहा बेस है अमृत का, इसलिए संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोग, 14 के 14 लोग उनको नमस्कार करते हैं। श्री राधे। अगर वो नमस्कार कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कारण है
कितना नंबर अध्याय है अनुशासन पर्व का? 51। लेसन नंबर, चैप्टर नंबर 51। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। इन महाभारत 1 लाख 6-7 पार्ट में आता है, एक पार्ट में भी नहीं है। 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। तो उसमें कई पर्व हैं। तो उसमें ये जो कथा आती है ये अनुशासन पर्व की कथा है। तो जहां पर बैठकर वह श्वास लेती है वह स्थान चमक उठता है, वहां का सारा पाप खत्म हो जाता है। अगर आप वहां जाएंगे तो आप जब उस एरिया में आप इंटर करते हैं तो वह एरिया प्योरेस्ट वाइब्रेशन के साथ है, वहां कुछ भी निगेटिव वाइब्रेशन नहीं है। तो आपका मन भी प्योरेस्ट हो जाता है। उस वाइब्रेशन में आकर आपका मन भी उस प्योरेस्ट वाइब्रेशन को लेता है, आपका शरीर उस वाइब्रेशन को फील करता है, उस वाइब्रेशन का प्रभाव जो है शरीर पर पड़ता है। श्री राधे। गावः स्वर्गस्य सोपानम्, गावः स्वर्गे विपूजिताः, गावः कामदुहो देव्यो नान्यत् किंचित् परमस्मृतम्। गावः स्वर्गस्य सोपान, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। जिस स्वर्ग की हम इच्छा करते हैं ना महाराज, नरक नहीं जाना महाराज, किथे जाना, कहां जाना है भाई? नहीं, स्वर्ग जाना है। तो अगर स्वर्ग की कोई सीढ़ी है, गावः स्वर्गस्य सोपानम, तो जो गौ माता है वह स्वर्ग की सीढ़ी है। और अगर स्वर्ग जाना है तो वह रास्ता थ्रू गौ माता ही जाएगा। वो लेडर वही है, उनके बगैर तो फिर बैतरनी जिंदाबाद। हाँ, फिर तो बैतरनी में डुबकी लगाते रहना। और वो पता ही है बैतरनी कितनी अच्छी है, मैंने कई बार बता दिया है, पिछली बार में बताया था। बैतरनी है, फिर बता देता हूँ, 1 सेकंड की बात है। वो मुझे अच्छा लगता है बैतरनी बताने में। श्री राधे। बैतरनी है 3600 किलोमीटर में, लेंथ भी विड्थ भी वो 3600 ही है, 3600 किलोमीटर। और उसमें बहता क्या है ये बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज बहती है। उसमें बहता है लेट्रिन। पानी में क्या है? लेट्रिन, मूत्र यानी यूरिन, ब्लड, कफ, नाक की गंदगी, पीप, पस, ये वो पानी में बहता है। यानी बैतरनी जो है वो रक्त, लेट्रिन, यूरिन, पस, कफ इत्यादि से बना हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें तरह तरह के, बहुत स्वादिष्ट। और जीव उसमें से गुजरना ही पड़ेगा। जिनको यहां मारकर खाते हो ना, वो सब वहां बैठे रहते हैं। मछलियों को वही पसंद है ना हमारा, गंदगी तो मछली खाती है, और क्या खाती है? मुर्गी भी वही खाती है। श्री राम। वो वहां छोटे छोटे जीव जंतु बैठे रहते, और जीव को उसके बिना बैतरनी पार किए नहीं जा सकते। आप कई बार लोग कहते हैं डराया जाता है, अरे बाहर बाद में कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, किसने देखा आगे का है। कई बार ये प्रश्न उठता है ना कि आगे तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, जो कुछ है यही है। ये सब बेवकूफ बनाते हैं कि आगे भी वो नरक में जाना पड़ेगा। मैंने भाई उनसे पूछो ना जो प्रेत बन गए, कभी प्रेतों से मिलो, पूछो पकड़ के, बोले भाई क्या क्या तेरे साथ गुजरा, तो सारी बात बताता है, वो सारी चीज बताता है, एवरीथिंग। वो अपने साथ हुए हर चीज को बताता है। बोले भाई कैसा है आगे? बोले भाई बहुत कष्ट है महाराज। हैं? हमने तो सुना आगे कुछ नहीं है। कहा फिर जब जाएंगे तो पता लगेगा ना।
भाई बिना गए क्या पता। आपके यहाँ एक गेम होता है ना, वो समुद्र में अंदर वो जाते हैं देखने के लिए कि अंदर काका है। अब बिना गए हमें क्या पता कि अंदर काका है, कैसी मछली है, कैसा कोरल है, क्या है क्या नहीं है। वो कोरल इत्यादि देखने के लिए लोग जाते हैं ना, डाइविंग करते हैं उसके अंदर। बिना गए हमें क्या पता कि पानी के अंदर भी गुजर। जब मैं जाऊंगा तो पता लगेगा। तो कभी प्रेतों से बात करो तो कहते हो जब जाएंगे तो पता चलेगा ना, महाराज बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है। कभी मिलो तो पूछना। श्री राधे। आगे बहुत कुछ है, अब इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है, गावः स्वर्गस्य सोपानम, महर्षि चंदन कहते हैं राजन गौएं जो है वो स्वर्ग की सीढ़ी है। और गावः स्वर्गे भी पूजिता, और स्वर्ग में भी इंद्र चंद्र वरुण ऐसे देवता गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। गावः स्वर्गस्य सोपानम, गावः स्वर्गे भी पूजिता। हाँ राजन, स्वर्ग में भी गाय उतनी ही पूजनीय है जितना आपके यहाँ है। देवताओं के लिए भी उतनी ही पूजनीय है। दिन रात देवता गौ माता की सेवा में रहते हैं। गावः कामदुहो दिव्यो नान्यत किंचित् परम स्मृतम्। और गाय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, जितनी भी इच्छा है गौ माता पूरा कर देती है। श्री राधे। बिना गौ माता के तो कोई कामना ही पूर्ण नहीं होता। हमारा पूजन भी करना है ना, छोटा मोटा भी, तब भी पंडित जी कहेंगे दूध लाओ। वो दूध नहीं, वो गाय का दूध मांगा जाता है। लेकिन अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है। हमारे यहाँ कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जस्ट लाइक अ फ्रेज। अब कुछ तो है नहीं तो यहाँ चलो वही ले आते हैं, A1 मिल्क ही ले आते हैं, डब्बा बंद है वही लाना पड़ेगा। वो भी है ही नहीं। पहले तो गाय पालते थे, अब गाय पालते हैं। श्री राधे। अब जब गाय पालते नहीं तो दूध कहां से लाना? गाय भी पिलाना पड़ेगा, दूध भी होना चाहिए, दही भी होनी चाहिए, घी भी होनी चाहिए। क्योंकि दूध, दही, घी और गोबर और गौमूत्र, इसके बगैर तो कोई पूजन नहीं है। किसी का भी पूजन कर लो, किसी का भी पूजन नहीं है। इनके बगैर तो कोई पूजन नहीं है ना। आप लोग पूजन करवाते हैं तो आप लोग को पता हो, मुझे तो पता नहीं, मैं तो करवाता नहीं इसलिए। श्री राधे। तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कुछ भी गौ माता से कुछ भी मांग लीजिए, मिलता है, 110% मिलता है। और इसकी अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो अपने यहाँ ही देखो, सूर्य नारायण दास को। सूर्य नारायण दास अकेले इंसान, न लाइट है, न पानी है, न बिजली है, न कुछ है। उस जंगल में, यहाँ घर में जब लोग रहते हैं तो 5 कुत्ता पाले रहते हैं। किसी ने मेरे को मैसेज किया, उनको दीक्षा लेनी थी। अब उनका मैसेज आया है कि महाराज जी सॉरी टू से दैट आई एम नॉट टेकिंग दीक्षा नाउ बिकॉज आई हैव 5 dogs एंड आई, मतलब रोज वो बना रहे हैं, प्रिपरेशन करते हैं 5 कुत्तों के लिए नॉनवेज फूड। तो मैं कैसे ले सकती हूँ या ले सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास 5 कुत्ते हैं और उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है रोज। मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन कुत्तों के लिए बना रहा हूँ। गुड, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास मैसेज है, इसमें नहीं है, दूसरे नंबर में है। श्री राधे। कल संडे को आया, हाँ कल ही आया, कल आया। श्री राधे। तो जहां कुछ भी नहीं है, एक अकेला शख्स, उन गायों को कोई और नहीं रहता, अकेले ही रहते हैं बेचारे। 60 गौ माताएं और अकेले ही रहते। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी पीने के लिए वो नदी से ही जाना पड़ेगा, जो कम से कम इनके कमरे से
300 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर तो पक्का होगा, और जंगल एरिया, बिल्कुल वहां जाने के लिए इतने सारे जंगल से गुजरना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था में अगर कोई रह रहा है और सब कुछ हो रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुकी नहीं है कभी, गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है, हर प्रकार के संकट से बचाया, हर प्रकार से, ये प्रमाण है कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है गौ माता श्री राधे। उनसे बढ़कर कोई है ही नान्यत किंचित परम स्मृतम। कहा राजन, गौ माता से बढ़कर और दूसरा कोई है ही नहीं जो कामनाओं को पूर्ण कर सके। श्री राधे। और फिर कहा महर्षि ने, इत्येतद् कोशुमे प्रोक्तम् महात्म्यम् भरतर्षभ गुणैकदेश वचनम् शक्यं पारायणं न तु। राजन, जो मैंने आपको ये गौ माता का महात्म सुनाया है, ये सिर्फ उनके गुणों की थोड़ी सी झलक है। उनके गुणों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, मां सरस्वती नहीं कर सकती। मां सरस्वती भी गुणों का वर्णन नहीं कर सकती हैं। मैंने जो गौ महात्मा आपको सुनाया है, ये गौ माता की हल्की सी झलकी है, गुणों के अंश के बराबर है, बिल्कुल छोटा सा अनुप्रमाण। उनके महिमा का वर्णन तो शास्त्र भी नहीं करता, यहां तक कि मां सरस्वती, मां शारदा जो ज्ञान की देवी हैं, वो भी नहीं कर सकती, भगवान शेषनाग भी नहीं कर सकते गौ माता के गुणों का वर्णन। इसलिए हे राजन, आपने जो यह एक गाय देकर मुझे खरीदा है, तो मैं, क्योंकि गौ माता ऐसी है कि एक गाय भी मेरे मूल्य से बढ़कर है, मैं एक गौ माता के मूल्य के बराबर का नहीं हूं, लेकिन आपने एक गौ देकर के मुझे खरीदा है, तो मैं आपका हुआ। मल्लाहों ने जब गौ महिमा सुनी, तो मल्लाहों ने वो गाय दान पुनः कहा, महाराज बड़ी कृपा, अब हम ये गाय आपको दे रहे हैं। महाराज नहुस ने एक गाय देकर के मल्लाहों को 90 रुपए मूल्य चुका करके 90 को मुक्त किया जाल से। मल्लाहों ने जब गायों की महिमा सुनी, तो उस गाय को दान पुनः 90 ऋषि को कर दिया। कहा महाराज, ये गाय हम आपको दान करते हैं। अगर इतनी महिमा है, गावो स्वर्गस्य सोपानम, तो इससे बढ़िया मौका हमें कहां मिलेगा कि हम गाय को दान करें और स्वर्ग चले जाएं। ऐसे तो जाने वाले नहीं, क्योंकि हम तो मल्लाह जाति के हैं, तो कष्ट तो हमें भोगना पड़ेगा, इतनी जीवों की हत्या कर देते हैं। और मल्लाहों ने तुरंत वो गाय दान महर्षि चव्यन को किया। और महाराज, उस गाय दान की महिमा और चव्यन का आशीर्वाद से उसी समय मल्लाह सब परिवार स्वर्ग चले गए। उसी समय, देर भी नहीं लगा, उसी समय सब परिवार मल्लाह अकेले नहीं गए, जबकि जो मछली पकड़ने वाले लोग थे वो तो पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी। लेकिन जब मल्लाह स्वर्ग जा रहे हैं, गावः स्वर्गस्य सोपानम, एक गाय दान सभी मल्लाहों ने मिलकर किया। और उस गाय दान के प्रभाव से, गौ सेवा के प्रभाव से, थोड़ी देर के लिए इसे, जितने देर वो महात्मा की कथा सुना रहे हैं, उतने देर गौ सेवा की, उतने देर घास खिलाने लगे, उतने देर उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। और इतने कर्म से ही और गौदान से समस्त के समस्त मल्लाह श्री राधे स्वर्ग चले गए। महाराज नहुस ने ये देखा कि एक गाय जो मैंने अभी अभी दिया, उसकी सेवा से सबके सब स्वर्ग चले गए। बड़ा आश्चर्य है महाराज। उन्होंने तुरंत महर्षि गोजात का पूजन किया, चव्यन का पूजन किया और वापस आए। और फिर अपना पूरा जीवन गौ सेवा में, महाराज नहुस की बहुत बड़ी गौ सेवा की भक्ति है। गौ सेवा करते हुए राज्य का पालन पहले भी करते, लेकिन पहले स्वयं कम करते और सेवक लोग ज्यादा करते। लेकिन जब यह आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक गौ दान से पूरे के पूरे मल्लाह, सबके पूरा गांव ही चला गया स्वर्ग, तो उन्होंने वापस आकर के गौ सेवा स्वयं करनी आरंभ कर दी। श्री राधे। और उस गौ सेवा के महात्मा से महाराज महर्षि चव्यन का मूल्य भी चुका। एक गाय की सेवा
मल्लाह स्वर्ग चले गए और नहुस ने भी अपने धर्म की रक्षा की। ये गौ सेवा का महत्व है। और एक नहीं महाराज, ऐसे हजारों कथाएं। ये गौ कथा कहीं बाहर से नहीं आई है, ये भगवान वेद व्यास वाल्मीकि आदि ऋषियों की ही दी हुई कथा है, कहीं बाहर से नहीं है, भगवान वेद व्यास की दी हुई है। अब ये अलग बात है कि अब कहां ये शास्त्रों में छुपा पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना, क्योंकि इतना शास्त्र तो अध्ययन होता नहीं, तो इसलिए गौ कथा की जा रही है। कई बार लोगों को लगता है बोले भागवत तो सुनी थी, राम कथा तो सुनी थी, गौ कथा कहाँ से आ गई? नहीं, कुछ नया ही कुछ बना देते हैं ये लोग। हम लोग कुछ नहीं बनाते। उन्हीं व्यास आदि जो हमारे ऋषि हुए, उनके दिए गए प्रसाद को ही हम बोल रहे। इतनी बड़ी महिमा महर्षि चव्य, जिनका मूल्य समस्त राज्य देकर भी चुकता नहीं हो रहा, वो एक गाय से चुकता हो गया, और उस गाय के प्रभाव से मल्लाहों का भी उद्धार हो गया। तो हम करेंगे तो हमारा नहीं होगा क्या? लेकिन दुख ये है महाराज कि हम लोग न करते हैं न किसी को कहते हैं कि करो। तुम्हारी शरण मिल गई है मैया, तुम्हारी कसम जिंदगी हो गई है। हमें देखने वाला कोई न था, हमें देखने वाला कोई न था। तुम जो मिले बंदगी मिल गई है, तुम्हारी शरण मिल गई मैया, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई है। बचाते न तुम डूब जाते हो मैया, कैसे किनारे लगाते मैया। बचाते न तुम डूब जाते हो मैया, कैसे किनारे लगाते मैया। गमे जिंदगी से परेशान थे, गमे जिंदगी से परेशान थे। रोते लबों को हंसी मिल गई है, तुम्हारी शरण मिल गई है मैया, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। समझ के अकेला सताती ये दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती ये दुनिया। समझ के अकेला सताती ये दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती ये दुनिया। गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो। मुझे आपकी दोस्ती मिल गई है, गनीमत है तुम मेरे साथ हो। मुझे आपकी दोस्ती मिल गई है,
माता